Hello class 9th. We are going to do back exercise of a lesson 11 If I Were You. If I Were You. This lesson is written by Douglas James, and in this lesson we came to know that there were two characters. One is Gerard, and the complete name of Gerard is Vincent Charles Gerard, and there one person is there also, one character is there also, and that is intruder. And that intruder broke into the house of Gerard. He wanted to take the identity of Vincent Charles Gerard because he was a killer, and he want to take the identity of Vincent Charles Gerard. That's why he can live here easily. He can be live in the house of Gerard with peacefully. So some question answer also given here. So we are going to do the given question answers. Yes, you. So question first one is there. Yes, you. At last, a sympathetic audience. So who says this? So answer is this was this is said by Gerard. Gerard says this. So answer given here. Why does he says it? ऐसा उसने क्यों कहा? Gerard says this. Gerard ने ऐसा कहा because he is glad that वो खुश था that finally के अंत में someone has asked him कि किसी ने उसको कहा to speak about himself, अपने बारे में बोलने के लिए. तो किसी ने mean who was there? So two persons were there, and this is a conversation between two persons. Who are they? Mr. Gerard and intruder. They both were there and they both were talking. And Gerard ने intruder ने उसको कहा कि हाँ बताओ अब तुम बोलो. Is he sarcastic or serious? जब उसने ये कहा at a sympathetic audience, तो फिर उसने ये क्या उसका मजाक था या वो सीरियस था? No, he is sarcastic. वो उसका मजाक कर रहा था. Next question is, why does the intruder choose Gerard as the man whose identity he wants to take on? तो इंट्रूडर ने, घुसपैठिए ने गेरार्ड को ही क्यों अपनी आइडेंटिटी लेने के लिए चुना? यस, व्हाई डज द इंट्रूडर चूज गेरार्ड? इंट्रूडर ने गेरार्ड को क्यों चुना एज द मैन, उस आदमी की तरह, हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन, जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान वो लेना चाहता था. सो आंसर इज द इंट्रूडर चूजेस गेरार्ड. इंट्रूडर ने या घुसपैठिए ने गेरार्ड को चुना बिकॉज ही फील्स दैट, क्योंकि वो महसूस करता था दैट दे आर सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि गेरार्ड और जो इंट्रूडर है वो दिखने में एक जैसे हैं. एज ही हैज़ कमिटेड ए मर्डर, और वो जो इंट्रूडर है वो एक मर्डर कर चुका था. ही प्लान्स टू स्टील गेरार्ड्स आइडेंटिटी, वो गेरार्ड की आइडेंटिटी, गेरार्ड की जो पहचान थी उसको चुराना चाहता था. एंड लिव पीसफुली, और शांति से रहना चाहता था. Next question is there. How I said with bullets. I said it with bullets. So who says this? ये किसने कहा? And what does it mean? इसका क्या मतलब है? Is it truth? क्या ये सच है? What is the speaker reason for saying this? और स्पीकर का यानी कि बोलने वाले का मतलब क्या है ये कहने से? So who said this? ये किसने कहा? So it is said by Gerard. ये Gerard ने कहा. What does it mean? उसका क्या मतलब है? It means that when things went wrong. तो इसका मतलब ये है कि जब चीज़ें गलत हो जाती हैं, Gerard had to kill a person. तो Gerard को भी एक आदमी मारना पड़ा था. Next one is it the truth? क्या ये सच था? No, it is not the truth. नहीं, ये सच नहीं था. Gerard said this. Gerard ने ये कहा in order to escape being killed by the intruder. अपने आप को इंट्रूडर से बचाने के लिए उसने कहा. What is Gerard's profession? Next question is there. What is Gerard's profession? Gerard का प्रोफेशन क्या था? Record the parts of the play that support your answer. कि वो पार्ट्स जो प्ले के जो कुछ पार्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि उसका प्रोफेशन ये था, तो वो भी बताइए. सो देखिए, गेरार्ड इज अ प्ले राइट. गेरार्ड जो है वो एक नाटककार था, नाटक लिखने वाला था. दिस इज इंडिकेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग, और ये नीचे लिखा गया है कि किन बातों से लगता है कि वो एक प्ले राइट था. सो फर्स्ट वन इज दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल. इस बात से पता चलता है कि वो ड्रामेटिक था.
नेक्स्ट एट लास्ट ए सिंपैथिक ऑडियंस, और जब वो बोलता है एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, इससे पता चलता है कि वो एक प्ले राइट है. इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फुलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर. इससे पता चलता है आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस. यस, ये तो इनमें से कोई भी एक दो आप याद कर लें, एक दो जो पार्ट्स हैं उसका आप याद कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, कि तुम अब ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, रुक जाओ. हु सेज दिस? सो द इंट्रूडर सेड दिस. व्हाई डज द स्पीकर से इट? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? द इंट्रूडर सेज दिस टू स्केयर गैराड, गैराड को डराने के लिए कहा. नेक्स्ट वन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर will stop Gerard from being smart. What according to the speaker? स्पीकर के अकॉर्डिंग कौन सी बात थी जो गेरार्ड को स्मार्ट बनने से रोक सकती थी या रोकेगी? अकॉर्डिंग टू द इंट्रूडर के अकॉर्डिंग व्हेन गेरार्ड वुड कम टू नो, जब गेरार्ड को पता चलेगा दैट हिज एम वॉज टू किल हिम, कि उसका मकसद उसे मारना है, ही वुड गेट स्केयर, तो डर जाएगा, एंड स्टॉप बीइंग स्मार्ट, और वो स्मार्ट होने से बच जाएगा, स्मार्ट नहीं बनेगा. दे कैनॉट हैंग मी ट्विस्ट, दे कैनॉट हैंग मी ट्विस्ट, वो मुझे 2 बार फांसी पे नहीं लटका सकते, टांग सकते. हु सेज दिस? किसने कहा? द इंट्रूडर ने कहा. व्हाई डज द स्पीकर से इट? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? यस यू, द इंट्रूडर सेड दिस दैट, इंट्रूडर ने ऐसा कहा, ही हैज कमिटेड अ मर्डर, कि उसने एक मर्डर कर रखा था, एंड गेरार्ड मर्डर वुड बी हिज सेकंड मर्डर, और गेरार्ड का मर्डर उसका दूसरा मर्डर होगा. ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ बीइंग पनिश्ड एज ऑलरेडी, क्योंकि वो सजा से नहीं डरने वाला था, नहीं डर रहा था, क्योंकि वो पहले से किसी को मार चुका था. He was to be hanged for the first murder, उसको पहले मर्डर के लिए अगर हैंग किया जाएगा, if he did once more, अगर वो एक बार और किसी का मर्डर कर देता है तो उसके लिए भी उसे हैंग ही किया जाना है. So they would not hang him twice for committing the 2 murders, अगर वो 2 मर्डर कर देता है तो उसे 2 बार फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता है. So next question is a mystery I suppose to explain, कि एक रहस्य यहाँ पे बनने जा रहा है. What is the mystery the speaker proposes to explain? तो कौन सी मिस्ट्री स्पीकर यहाँ पे प्रपोज कर रहा है, बता रहा है? गेरार्ड proposes that, गेरार्ड बता रहा है his lifestyle was mysterious, कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो मिस्टीरियस है, रहस्यात्मक है. as he did not meet many people, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से नहीं मिलता है. and he did not have any visitors, और ना ही उसके पास कोई आता है. he proposed to explain the reason, और वो प्रपोज करता है कारण बताने का, for his mysteriousness, कि उसका मिस्टीरियसनेस कैसा है ये बताने की वो कोशिश करता है. this is your big surprise, दिस इज योर बिग सरप्राइज. वेयर हैज दिस बीन सेड इन द प्ले, ये प्ले में कहाँ कहा गया है? दिस हैज बीन सेड ट्विस इन द प्ले, ये प्ले में 2 बार कहा गया है. फर्स्टली व्हेन द इंट्रूडर रिवील्स हिज प्लान टू किल गेरार्ड, जब पहली बार तो तब जब वो इंट्रूडर अपना प्लान बताता है गेरार्ड को. सेकेंडली बाय गेरार्ड, फिर गेरार्ड कहता है व्हेन ही रिवील हिज फॉल्स आइडेंटिटी टू द इंट्रूडर, जब वो इंट्रूडर को अपनी नकली पहचान बताता है, तो ये तब कहा गया है. यस यू, व्हाट इज द सरप्राइज? द इंट्रूडर सरप्राइज इज हिज इंटेंशन ऑफ किलिंग गेरार्ड. इंट्रूडर का सरप्राइज था कि गेरार्ड को मारने की उसकी मंशा, उसकी इच्छा, और गेरार्ड का सरप्राइज था उसकी नकली पहचान. सो दिस वाज द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन, एंड रेस्ट क्वेश्चन आंसर you will get. Thank you. Have a nice day. Learn this all. Thank you.